Hello Hello everyone, everyone, welcome welcome back back to to the the IC IC Travelers. Travelers. Alright, so she thinks that we'll be going home tonight. We are going to the airport, but not yet. We are not going home tonight. We are actually going to a resort here. We are staying here in Phuket one more day, but not here. We are going to a resort today. That's a special one, and she has no idea. And I'm so happy about it that she has not got any idea till yet. So she has done all her packing in that manner, like according to luggage restrictions in the airport. So let's see. Let's go. हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट के लिए और अचानक से कैब ने टर्न लिया और साथ ही साथ मेरे मुंह से निकला, क्या आज हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं? और संजू ने बोला नहीं, हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए। उसका आंसर सुन के खुशी मिला या गुस्सा आया पता नहीं, पर ये रिजॉर्ट देख के मेरा मन सच में खुश हो गया। फाइनली और एक दिन फुकेट में। एंड यस, आई लव सरप्राइजेस, और ये सरप्राइज बेस्ट था इस ट्रिप का। संजू ने पहले से ही सब प्लान करके रखा था और इसीलिए हम लोग रिजॉर्ट पहुँचे अराउंड 1:30 PM को, क्योंकि चेक इन का टाइम था 2 बजे। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और पूरा रिजॉर्ट भी देखना चाहती थी, इसलिए चेक इन से पहले ही हम निकल गए रिजॉर्ट की टूर के लिए। रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा था तो पॉसिबल नहीं था कि सब कुछ देख लूँ एक ही बार में, पर फिर भी रिसेप्शन एरिया, मेन एंट्रेंस हम लोगों ने घूम ही लिया था। इतनी ही देर में गोल्फ कार्ट भी आ गया और हम लोगों की चेक इन भी हो गई। गोल्फ कार्ट आया था क्योंकि ये रिजॉर्ट नॉर्मल रिजॉर्ट के जैसा नहीं था, ये सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इस रिजॉर्ट के रूम नीचे से ऊपर तक यानी पूरा हिल टाइप एरिया एक कवर करके था। इस रिजॉर्ट में 3 स्विमिंग पूल, 4 रेस्टोरेंट, जिम, स्पा और बच्चों के लिए गेम रूम भी अवेलेबल है। हम लोग पहुंच गए अपने स्टॉप पे और रिसेप्शन से उन्होंने हमें एक मैप दिया था पूरे रिजॉर्ट का। रूम तक पहुंचने के लिए भी हमें फिर से काफ़ी दूर जाना पड़ा और हमारा गोल्फ कार्ट राइड भी कम से कम 4 से 5 मिनट का था। संजू ने बुक किया था ग्रैंड डिलक्स ओशन व्यू रूम। Room tour of this wonderful resort. This is the card where you can insert. First of all, let's check the bathroom. Alright, the Ludia, separate bath area. That's me. And from here you can see the room. You have 2 cupboards, locker, hair dryer, and then alright, some hangers, extra pillows. So here you have some Nescafe, water, electric kettle, and here you have the okay, yes, something loaded up.
all these might be chargeable. This is the area where you can keep your luggage like we had, and this here is the bed with a nice table lamp. Let me show you. There's a balcony. Okay, you get a direct view of the swimming pool that we have in this resort. You go enjoy there and look at the Andaman Sea. That's Patong Beach. That's Patong Beach there. This is beautiful. This is beautiful, yeah. You have some comfortable chairs to sit here. Some lamp. And this here is the room. And this is how you can control everything. All right. So that is the room. Good. Very good. All right. Okay, so we have got a map of the whole resort. It's quite big. That's why we got that like cart to get us to our rooms. And here all the informations are given, the Wi-Fi, everything, and the swimming pool time. Yeah, for the swimming we got these two cards. It says pool towel card, so I'm not very sure. Maybe this is also to access the pool. And right now we are going for the pool session also. So let's go. So there is our room somewhere. That's the swimming pool, and that's actually the infinity pool. This is an infinity pool, and that's the sea. And there's the pool bar, and from here we will get the pool towel to exchange it. Can I get the pool towel? Yeah. Yeah. What's your number? 6208. The glass of Chardonnay. Lawson. Yes. Thank you so much. So we return this? Yeah. After that you okay, fine. So we are having a great time over here. The swimming pool is quite big, and for those who love swimming would really like it here in the swimming pool. And the one who doesn't know swimming would also like it here because They can float. they can float here, and you can just, this is an infinity pool, so you can just see the beach and the Andaman Sea from over here. You can just have a great time, relax and see the land, so you can swim all around. I haven't swam for quite a time now.
So now we'll try to have a local transportation here. Like in Phuket, it's very hard to understand if the local transportation works, and the Ball taxi or the Grab taxi here cost way too lot. Like in Pattaya, it was so nice, but here it's like for 4 kilometers, it took 300 baht for us when we came to this resort today. So we'll try to have a local transportation, how much it takes, because normally in Phuket we did not require any local transportation. It was all this tour, Phi Island tour and James Island tour. Right now we'll require one. तो हम लोग जैसे गए थे बाहर वैसे ही वापस आ गए, क्योंकि हम लोग को कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला. अगेन यहाँ पे भी 7-11 ने बचा लिया, क्योंकि वो नहीं होता तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती. हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया एंड फिर वापस आ गए. और पहले मैं होटल की बात बोलूँ तो होटल काफ़ी अच्छा है. कम्प्लीटली सरप्राइज था मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. रूम हो, पूरा एम्बियंस हो, थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट कर ही देते हैं वो लोग. एनीवेज बाकी रूम बहुत अच्छा है, पूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया एंड जो व्यू है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है. बट यहाँ पे दुख की बात ये है कि ये थाईलैंड सीरीज़ की आखिरी की एपिसोड है. इसके बाद जो भी एपिसोड आएगा वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर आएगा थाईलैंड के बारे में. बट हाँ, जर्नी यहीं पे ख़त्म हो रही है. कल हम लोग जा रहे हैं कहीं और, मतलब कुछ और दिन बाद आप लोगों को वो भी ज़रूर पता चल ही जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं. तो अभी बात हुई पूरी थाईलैंड सीरीज़ की. अगर मैं बोलूँ एक्सपीरियंस के बारे में, मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी पसंद आया. मैं अगर बैंकॉक की बात बोलूँ तो बैंकॉक में जहाँ हम लोग गए, बैंकॉक में हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला था होटल में. हम लोग जस्ट सुबह उठते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, रेडी होते थे, निकलते थे. और हम लोग जिस होटल पे थे उधर का ब्रेकफास्ट पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. उसके बाद हम लोग जहाँ पे भी गए, वो ग्रैंड पैलेस हो गया हो या फिर जहाँ जो भी जगह था उसमें सब कुछ मुझे पसंद आया. क्रूज को छोड़ के, मैंने पहले बोला ही है, और जो थाई फूड था वहाँ का उसको छोड़ के. अदरवाइज मैं अगर बोलूँ बैंकॉक के बाद तो डेफिनेटली लोगों को आना चाहिए. मतलब ये ऐसा जगह है जो एक्सपीरियंस आपको कहीं और पे शायद ना मिले, जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगी, मतलब बैंकॉक में. उसके बाद अगर मैं पताया की बात बोलूँ तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था. जब हम लोग पहले पताया में होटल में रहे, मतलब होटल पहुंचे, मेरा टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया था. मुझे इधर तो कुछ भी नहीं है, कैसे होगा. पर ट्रस्ट में फुकेट से बहुत ज़्यादा अच्छा है पताया के ट्रांसपोर्टेशन. वहाँ पे पैसा कम लगता है, वहाँ पे आपको इजीली कैब मिल जाता है, आप कहीं पे भी जा सकते हो. और वो होटल, मतलब हम लोगों को जिस प्लेस में जैसा होटल मिला वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था. बाकी पता है कि मैं ट्रिप के बारे में बोलूँ तो मुझे पता है हमें सब पसंद आया. उधर का वाइब ही अलग है, उधर का जो हाइप था, उधर का जो क्राउड था, एक एनर्जेटिक था वो पूरा जगह, कि आप में भी वो एनर्जी आ जाती है कि आप रात को कभी भी निकल के जाओ तो आपको सेम ही मतलब एनवायरनमेंट मिलेगा. और उधर सबको ही बस अपना अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, तो वो बहुत हैपनिंग टाइप का प्लेस है. तो डेफिनेटली पता है, थम्स अप. अभी फुकेट का मैं बात बोलूँ तो फुकेट का सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन का जो है. यहाँ पे जो ग्रैब ऐप हो गया हो या फिर हम लोगों ने और एक कौन सा ऐप यूज़ किया था, बोल्ट, हाँ, वो दोनों ही ऐप यहाँ पे कोई काम के नहीं है, क्योंकि जितना भी वो लोग पेमेंट दिखाते हैं वो एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा हाई है. और यहाँ पे आप अगर लोकल ट्रांसपोर्टेशन किसी को भी पूछो, इधर पे तो बाइक कैब भी जो चलता है वो भी बाइक टैक्सी वो लोग बोलते हैं, तो वो भी 200-300 मांग लेते हैं. तो वो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है. आप लोग जब भी आओ, अगर आप लोगों को मतलब पूरा सिटी टूर भी करना है तो आप लोग अपना इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपने साथ डेफिनेटली कुछ भी मैनेज करके लाओ अपनी कंट्री से, क्योंकि यहाँ पे स्कूटी मिलेगा तभी आप लोग सिटी टूर कर सकते हैं. और संजू और मेरे मामले पे ऐसा हो गया था कि हम लोगों का आइलैंड टूर पहला प्रायोरिटी था, एंड नेक्स्ट सिटी हम लोगों ने आते जाते घूमते फिरते इतना ज़्यादा देख लिया कि हम लोग की सिटी टूर ऑलमोस्ट हो ही गई. एंड बाकी बोले तो मैं अगर फुकेट की बात बोलो, फिफी आइलैंड, मैं
कुछ नहीं बोल सकती, वो आइलैंड नहीं, वो जन्नत है। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ, जिस दिन हम लोग सेकेंड डे टूर पे गए, जेम्स बॉन्ड आइलैंड हो गया, पर वो जहाँ पे हम लोगों ने वो एक्टिविटी, क्या नाम है उस एक्टिविटी? कैनोइंग। हाँ, सेकंड कैनोइंग डेफिनेटली। वो जो व्यू था होंग आइलैंड, प्रोबेबली यस, हाँ, तो होंग आइलैंड का जो व्यू था वो मेरे आंखों से अभी भी नहीं हट रही है, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मे बी फुकेट इसलिए फेमस है कि उनके पास जैम है, बोलते हैं ना, नेचर ने उन लोगों को सब कुछ दे दिया है, तो इसलिए वो लोग वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का ध्यान उन लोग नहीं रखने से भी होगा, लोग तो ऐसे भी आएंगे। एंड चलिए, तो यहाँ पे ही एंड करते हैं थाईलैंड सीरीज। हम लोगों के लिए काफ़ी एंटरटेनिंग था, हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की, होप आप लोगों ने भी सारे एपिसोड में उतना ही मस्ती किया होगा। एंड यस, थाईलैंड आइए, नहीं आ सकते हैं तब भी कोई बात नहीं, हम लोग हैं, हम लोग आपको साथ में घुमाते रहेंगे, हम लोग जहाँ जाएंगे आप लोग भी वहाँ जाएंगे। एंड हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड हमारे बाकी जितने भी वीडियोस है उसको भी देखिए। कुछ भी जानना है तो कमेंट कर दीजिए हम लोगों को, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड फैमिली जिसके साथ भी जाना चाहे, और बॉयफ्रेंड भी चलेगा, उनके साथ भी अपना वीडियो को शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर, बाय बाय।